Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi, and hope each one of you, as always, are absolutely fine, happy, hale, and in the finest health. So now, in this particular session, as always, the curiosity arises whenever I say actually what we are supposed to do. In fact, we are picking up a very heavyweight chapter, and each one of you were quite keen and crazy that I should start this particular chapter. And this particular chapter happens to be, as you know, business combination and corporate restructuring. Of course, in the light of Ind AS 103, we are going to do, as I said, a very heavyweight, important, significant chapter, that is business combination and corporate restructuring. Now, the moment I uttered the word business combination and corporate restructuring, some of you might be feeling that you are already familiar with these two words, business combinations and corporate restructuring. Yes, you are not wrong at all. Your notion is absolutely correct. You are already familiar with these two words. And if I will open it down, or as we call it in English, that is, if I am going to break it up, then ultimately we will come across the wordings like amalgamation, absorptions. So business combination, corporate restructuring is nothing, almost sort of what we call amalgamation, absorption, reconstruction, merger, demerger, spin-off, reverse merger, as you are already what we call quite familiar of with these wordings, these what we call connotations. Now, if you remember, actually, you have done amalgamation, absorption, external reconstruction at least, if not demerger or demerger, reverse merger, etc. But definitely, I expect that each one of you have already gone through amalgamation and absorption. But amalgamation and absorption, which you did earlier, of course, you did in the light of existing accounting standard, that is AS 14. Of course, the names suggest quite similarities, so some of us might be tempted to say or tempt to what we call think that this particular chapter has got great similarity with the one which we have already done earlier. I wish I could say yes, but unfortunately I will have to say no. There is a complete contrast, as we are going to see under Ind AS 103, business combination, corporate restructuring. It is not at all what we call bearing any similarity with the one which you already did earlier in the light of AS 14. So this particular chapter is not very easy, to be very honest with you, but at the same time I do not want to actually instill unnecessarily fear that it is tough. Only thing is that it is new, and so often I keep on saying everything which is new must be what we call graced with great sharpness, and then automatically the interest develops. And it is a saying, when you actually develop interest towards any particular thing, the thing never actually appears tough, never appears hard, never appears very difficult to comprehend. So on such note, we are going to start what we call business combination and corporate restructuring. As I said, I have already told you it's a very significant, formidable chapter from the examination point of view. As far as my opinion goes, I would say actually two questions may be asked from this particular chapter. One theoretical sort of question, case study question, and another one, of course, practical oriented. And you shouldn't be surprised even if three questions are tossed in the examination, because there are some smaller practical length question and some higher length practical questions. So all in all, as I said, it's a big chapter, it's a high strength chapter, and it's a very important chapter. So here we go and start this particular session. So far I have spoken in English, but now I will shift to Hindi. As always, I always start a little bit with what we call English in the initial stages, but you should not think that it's an English class. It's an, as usual, bilingual class. So here we go. So it's the input. So we are going to actually, as I said, जैसे कि बेटे मैंने कहा कि हम business combination and corporate restructuring का चैप्टर करेंगे. मैंने कुछ लम्हा पहले ये भी कहा था कि एक मर्तबा ये नाम सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कि इन वर्डिंग से हम फेमिलियर हैं, फ़कत हमने ये चैप्टर पहले करा हुआ है. मैंने कहा निश्चित रूप से आपने इससे पहले अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर करा था, लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 14 के तहत करा था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चैप्टर में, या जिस तरीके से हमने अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, मर्जर, डीमर्जर्स पहले करे थे, उनमें और अब हम जिस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब हम इंड AS 103 के हिसाब से करेंगे, तो उसमें अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. इंड AS 103 की हिदायतें, गाइडलाइंस, रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स कंप्लीटली इन कंट्रास्ट हैं. तो अब हम इसको देखेंगे. ये एक तरीके से आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए एकदम नया चैप्टर है. करेक्ट. तो
पहले मैंने चैप्टर का टाइटल लिखा, फिर हम धीरे धीरे इस पे बढ़ेंगे। यानी कि जब मैं ये चैप्टर कर रहा हूं तो इंड एस 103 ऑटोमेटिकली आपका साथ साथ होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? थोड़ा सा मैं एक मिनट सेटिंग कर लूं बेटे यहाँ पर, तो तब तक आप पेन पेंसिल वगैरह निकाल लें। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस कॉम्बिनेशन, हालांकि बार बार कहने की आदत हो गई है बिजनेस कॉम्बिनेशन। हकीकत में चैप्टर का नाम आपको भी मालूम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या बात है। जैसे ही हमने एक हैवी वेट चैप्टर स्टार्ट करा, आज पेन कहता है मेरे को भी काम नहीं करना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। शीट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रहा है या नहीं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, करेक्ट। और मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है हम इन दी लाइट ऑफ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इंड एस 103 के हिसाब से करेंगे। जब मैंने कहा कि हम इंड एस 103 के हिसाब से इस चैप्टर को करेंगे, तो इसका ये भी मतलब निकला कि मैं IFRS 3 की बात कर रहा हूं। IFRS 3, करेक्ट। कोई भी ऐसा इंडेस जो IFR पर बेस्ड है, IFRS पर बेस्ड है, वो 100 की सीरीज का है। IFRS 3 इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेस होगा इंडेस 103, करेक्ट। बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहें। तो मैंने अब बोलना शुरू करा। शुरुआत में ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ही। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्टैंडर्ड का बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ, अभी आपने लिखना नहीं है, मैं एक रफ शीट ले रहा हूँ। ये मैंने एक रफ शीट निकाली। रफ शीट कहाँ चलेगी? चलिए जी, चलो मैं दूसरी रफ शीट निकाल लेता हूँ। यहाँ ना कोई, एक सेकंड जरा वेट करें। ये लीजिए जी, मैंने एक रफ शीट निकाली। और अभी तुमने कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। पहले ये ध्यान रखना है कि कुछ भी लिखना नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। हम ये भी मान लेते हैं कि इस एंटिटी ने इस एंटिटी का बिजनेस ले लिया। किसने बिजनेस ले लिया? एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस ले लिया। एक आम बोलचाल की भाषा में हम बोलेंगे कि ये परचेजिंग कंपनी है। जैसा कि आप इससे पहले जब अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन करते थे तो आप अधिकतर इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे। ये परचेजिंग कंपनी है, जिसका बिजनेस हमने ले लिया, वो वेंडर कंपनी है, करेक्ट। ये अपना बिजनेस बेचने वाली एंटिटी है, ये बिजनेस खरीदने वाली एंटिटी है। तो एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस लिया। अब बेटे इन्हीं अल्फाज को इंड एस में हम थोड़ा दूसरे अंदाज में बोलेंगे। एंटिटी ए जो है उसको मैं बोलूंगा कि ये एक्वायरर है, ACQUIRER। ये एक्वायरर एंटिटी है। एक्वायर करना, किसी चीज को हासिल करना, तो उसी से ये लफ्ज बना दिया गया एक्वायरर। और जिस एंटिटी को बेटा एक्वायर करा गया है वो एक्वायरी कंपनी है। हालांकि पहले भी ऐसे वर्ड यूज होते थे, जैसे वेंडी कंपनी, अगर आपने कभी सुना हो तो। एनीवे, अभी हम धीरे धीरे आपको इंडियस के लफ्जों के प्रति, मैंने कहा, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम बोलचाल की भाषा का यूज कर करके हम टफर जार्गन को समझने की कोशिश करें। जार्गन का मतलब है शब्दावली को यूज करने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ए ने बी का बिजनेस लिया, तो मैंने कहा इंडियस की परिभाषा में इसको मैं एक्वायरर कंपनी कहूंगा, इसको मैं एक्वायरी कंपनी कहूंगा, करेक्ट। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एक्वायरर किस एंटिटी को कहते हैं और एक्वायरी किस एंटिटी को कहते हैं। जो बिजनेस ले रही है वो एक्वायरर है, जिसका बिजनेस लिया जा रहा है वो एक्वायरी है। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि अब हम इंडेस 103 को देख रहे हैं, तो इंडेस 103 की जो गाइडलाइंस हैं उसका भी साथ साथ हम विश्लेषण करेंगे, विमोचन भी करेंगे, करेक्ट। अब स्टैंडर्ड पहले तो क्या है, ये स्टैंडर्ड का बेसिक थीम क्या है। अगर मैं एक बहुत ही शॉर्टकट अंदाज में बात करूं, कम अल्फाजों में बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि इंडेस 103 का जो मुख्य उद्देश्य है वो दरअसल एक्वायरर से रिलेटेड बुक से है, क्योंकि ये बिजनेस लेने वाली एंटिटी है। स्टैंडर्ड जो है हम बाद में देखेंगे कि हमें कुछ
गाइडलाइंस प्रस्तुत करता है जिसमें कि एक्वायरर को कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं, कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ हेल्प मिलती है कि किस तरीके से वो रिकग्नाइज करे, मेजर करे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसने एक्वायरर ने जो जो इससे एसेट लिए हैं, जो जो इसकी लायबिलिटीज टेक ओवर करी हैं, वेंडर कंपनी के जो एसेट और लायबिलिटीज हमने टेक ओवर करे हैं, ये रफ शीट है, अभी आपने नहीं लिखना है। तो स्टैंडर्ड कहता है, बेसिकली स्टैंडर्ड का थीम क्या है, स्टैंडर्ड हम देखेंगे बाद में, इट एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू रिकग्नाइजेशन रूल, विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट रूल्स, with respect to the assets and liabilities which the acquirer has taken over of the acquiring entity. Correct? तो बेसिक थीम तो मैंने आपको स्टैंडर्ड का बताया। स्टैंडर्ड का बेसिक थीम अब आपको पता लगना चाहिए कि एक्वायरर जब एक्वायरी कंपनी के एंटिटी के एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगा, क्योंकि हम उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम उसको अपनी बुक्स में किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे, किस तरीके से मेजर करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस, इसके बारे में हमें कुछ, मैंने कहा, गाइडलाइंस प्राप्त होंगी इस स्टैंडर्ड के थ्रू। नंबर 1 पॉइंट, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड का थीम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको याद होगा जब आप अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर करते थे, खास तौर से जब आप परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करते थे, तो यहां परचेजिंग कंपनी एक्वायरर है। मैंने ये भी कहा इंड एस 103, अगर मैं कम अल्फाज में कहूं तो बेसिकली हम देखेंगे कि एक्वायरर से रिलेटेड बुक से ही संबंधित है। करेक्ट, मोटे तौर पर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था कि आपने इससे पहले अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर करा है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। जब आप एंट्री करते थे, आपको याद होगा, खासतौर से जब आप सेकंड एंट्री करते थे तो आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता था। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड यही कहता है, जब एक्वायरर ने एक्वायरी का बिजनेस टेक ओवर करा तो किस तरीके से हम रिकग्नाइज करेंगे। बेटे, बहुत से लोगों को तो ना ये रिकग्नाइज का मीनिंग मैंने देखा आज तक पता नहीं है। फिर वो सोचते हैं रिकग्नाइज और मेजर एक ही वर्ड है। बेटा, अकाउंट्स में रिकग्नाइज का मतलब क्या है, इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक आदमी बनाना खरीद रहा है, केले खरीद रहा है, करेक्ट। अब उसने 4 केले खरीदे, या चलो आधा दर्जन थे उसने केले खरीदे, 6 केले उसने खरीदे और बनाना लेकर के वो घर आया। घर में उसकी वाइफ ने कहा, क्या बेकार से केले तुम लेकर के आ गए, अब ये देखो 2 केले तो कितने खराब हैं। तो उसकी वाइफ ने 2 केले तो बिल्कुल बस झटके से फेंक ही दी, ये खाने लायक, और 4 केले लेकिन उन्होंने रख ली। इसी को मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहूंगा, 6 बनाना में से उन्होंने 2 बनाना को रिकग्नाइज नहीं करा। उन्होंने ये माना ही नहीं कि ये जो है बनाना हमारे पास आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ रिकग्नाइजेशन? और 4 बनाना उन्होंने जो है वो रिकग्नाइज कर लिए। सिमिलरली अकाउंट्स में अब यहां पर क्या पोजीशन है, मैंने किस तरीके से उसको एनालाइज नहीं कर रहा, मैं एनालाइज करने की कोशिश करी है, इसमें समानता लाने की कोशिश करी है कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटी ले रहे हैं तो उसमें से किसको पहले तो रिकग्नाइज करें, यानी कि किसको हम पहले अपनी बुक्स में लिखें। ये रिकग्नाइज का मतलब है। जब हम रिकग्नाइज करेंगे उसके बाद ही उसकी मेजरमेंट पॉसिबल हो सकती है। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो स्टैंडर्ड हमें पहले तो मैंने कहा कुछ गाइडलाइंस देता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने लिया है उनको हम किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे, किस तरीके से मेजर करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड की दूसरी गाइडलाइन या दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब एक्वायरर कंपनी एक्वायरी के बिजनेस को टेक ओवर करती है तो जाहिर है कि उसमें कुछ गुडविल, या जिसको तुम पहले कैपिटल रिजर्व बोलते थे, अब उसका नाम हम देखेंगे कि गेन ऑन बारगेन परचेज हो गया, यानी कि कैपिटल रिजर्व का नाम एक तरीके से बारगेन परचेज हो गया है। उसके बारे में चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस पर मैं आ जाऊं। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जो हमने एसेट और लायबिलिटी लिए उसके अंतर्गत अगर कोई गुडविल हासिल होती है तो उसको किस तरीके से रिकग्नाइज करा जाएगा, उसको किस तरीके से मेजर करा जाएगा। या फिर अगर कोई गेन होता है, जिसको अभी अभी मैंने कहा कि बारगेन परचेज कहेंगे, जिसको कि तुम पहले कैपिटल रिजर्व कहते थे, तो बारगेन परचेज पर जो बारगेन का मतलब है, देखो वैसे तो लॉजिकली मैं किसी का भी बिजनेस खरीदूं तो कभी भी मुझे गेन तो नहीं हो सकता। आप इमेजिन करो कि एक आपका बिजनेस है और उस बिजनेस की वर्थ 10 लाख रुपए की है, चलो 10 करोड़ कर लो, कोई बात नहीं, 10 करोड़ रुपए की है।
अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूंगा तो क्या आप मेरे को 10 करोड़ से नीचे पर बेचोगे? लॉजिकली तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में खरीदने वाली एंटिटी को कभी भी फायदा हो ही नहीं सकता, इसलिए 99.99% गुडविल ही आएगी, क्योंकि गुडविल इज नथिंग बट कैपिटल लॉस। लेकिन फिर भी बार्गेन परचेस पॉसिबल हो सकता है। ऐसा अधिकतर तब होता है जब बेचने वाली एंटिटी अपना बिजनेस किसी दबाव में बेच रही है, किसी फोर्स में बेच रही है, जल्दबाजी में बेच रही है। उस केस में उसको लगता है ठीक है हमारा 10 करोड़ का बिजनेस है, कोई बात नहीं 9 करोड़ में बेच दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस केस में खरीदने वाली एंटिटी को फायदा हो जाएगा, जिसको कि मैंने कहा गेन ऑन बार्गेन परचेस कहेंगे, जिसको हम किसी जमाने में, अब जमाना तो मैंने जानबूझ के वर्ड यूज करा, इसका मतलब पुराने स्टैंडर्ड के अंतर्गत उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते थे। तो स्टैंडर्ड की दूसरी गाइडलाइन यही है कि जब हमने एसेट और लायबिलिटी को लिया, बिजनेस को लिया, उससे होने वाली जो उभरने वाली जो गुडविल है या गेन ऑन बार्गेन परचेज है, उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करा जाएगा, किस तरीके से मेजर करा जाएगा, उसके बारे में भी फिर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ये उसके अलावा स्टैंडर्ड का तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, पहला ऑब्जेक्टिव कि जो हमने एसेट और लायबिलिटी लिए, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ अभी नॉर्मल बात कर रहा हूं। हमने जो एसेट एंड लायबिलिटी लिए उसको कैसे रिकॉग्नाइज और मेजर करना है, जो गुडविल है और जो बार्गेन परचेज या गेन ऑन बार्गेन परचेज है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। और तीसरा पॉइंट इसमें है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जैसे मैंने किसी का बिजनेस लिया, करेक्ट, सपोज मैंने किसी का बिजनेस लिया, ये ए है ये बी है, ए ने बी का बिजनेस लिया, अगर 100% हमने एंटिटी बी के शेयर्स एक्वायर कर लिए तब तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने 80% शेयर एक्वायर करे तो इसका मतलब 20% शेयर इस एंटिटी के हमारे पास नहीं है। तो जिस एंटिटी को हमने लिया उसके जितने शेयर हमारे पास नहीं है, सिंपल अल्फाजों में, एक आम बोलचाल की भाषा में हम उसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते थे, जिसको कि तुम पहले के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 में। आपको याद आया जब आप होल्डिंग कंपनी वगैरह करते थे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसकी चर्चा अभी भरपूर रूप से हो गई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो एंटिटी ए ने जब एंटिटी बी का बिजनेस लिया स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, मैंने कहा कि अब एंटिटी ए को यह देखना है किस तरीके से वो अपने एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगी। उसके लिए उसको स्टैंडर्ड में दी हुई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें कौन सी, उसकी चर्चा आगे अभी होगी। और इसी तरह से जो गुडविल आई उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, इसी तरह बार्गेन परचेज आया किस तरीके से मेजर और रिकॉग्नाइज करेंगे, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस तरीके से हम मेजर करेंगे, ये स्टैंडर्ड की मुख्य धारा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी हमने सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है, अभी हम और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि स्टैंडर्ड, ये तो अभी मैंने एक तरीके से ना स्टैंडर्ड की अभी पहली गाइडलाइन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। अगर मैं दूसरा पॉइंट बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या है, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये रफ वर्क है। तो पता है कि मेरा इस तरह का काम वैसे भी कम ही करता हूं, रफ काम, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अभी हम फेयर वर्क पे आएंगे, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा आपने तभी लिखना है। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि दिस स्टैंडर्ड यानी कि इंड AS 103, अब जब मैं स्टैंडर्ड बोलूं तो मेरा मतलब इंड AS से ही होगा। तो इंड AS 103 ये भी कहता है कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई उसी ट्रांजैक्शन पर होगा, उसी ट्रांजैक्शन पर, लिखना नहीं है अभी आपने, उसी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स पर होगा जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है, जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन है। सर ये भी कोई कहने वाली बात है? ये तो हमें मालूम ही है कि ये स्टैंडर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए ही बना है। बेटा ऐसा स्टैंडर्ड इसलिए कहता है, हम बाद में देखेंगे, ऐसा हर बार नहीं होगा कि ए ने बी को ले लिया तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन ही होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। तो अगर ए ने बी को लिया तो पहले तो ए ने बी को टेक ओवर करा, ये एक ट्रांजैक्शन इवेंट है। क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है या नहीं, इसके देखने के कुछ मैंने कहा क्राइटेरियाज होंगे, जिनके बारे में अभी मैंने कहा धीरे धीरे चर्चा बाद में होगी। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड कहता है कि इंड AS 103 ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन पर ही अप्लाई हो सकता है जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएंगी, जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करेंगी। इज इट क्लियर टू यू? अभी मैंने नॉर्मल बातचीत करी है, फिर स्टैंडर्ड, अब ये तो फेयर वर्क है, फिर स्टैंडर्ड की जो तीसरी गाइडलाइन, अब ये रफ वर्क जारी है। ये कौन सा पेज आ गया भाई, इसको हटाई दो, ये कंफ्यूज करेगा पेज, ये तो पुराने पेजेस हैं। लाइए
ये सब अभी रफ वर्क है, अभी आपने कुछ नहीं लिखना। स्टैंडर्ड की जो तीसरी पॉइंट है उसका जो ताल्लुक है ना वो डेफिनेशन से। अब डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि एक तो एक्वायरर क्या है, अभी अभी मैंने इसका मीनिंग आपको बता ही दिया, एक्वायरर क्या है। उन्होंने बताया कि एक्वायरी क्या है, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। फिर एक्विजिशन डेट के बारे में स्टैंडर्ड कुछ कहता है, एक्विजिशन डेट के बारे में। एक्विजिशन डेट मान लेते हैं कि ये अकाउंटिंग ईयर है, करेक्ट। अकाउंटिंग ईयर 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/21 को खत्म हो रहा है। मान लेते हैं इस दिन, लेट अस से 1 जुलाई 2020 को ए ने बी को टेक ओवर करा, तो इस केस में एक्विजिशन डेट क्या कहलाएगी? 1/7/20। सिंपल वर्ड्स में एक्विजिशन डेट उस डेट को कहेंगे जिस दिन एक्वायरर एक्वायरी के बिजनेस को टेक ओवर करेगी। हालांकि इसके कुछ महीन पॉइंट्स भी हैं जो लम्हा ब लम्हा आगे धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हम आगे जिसकी बातचीत करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा तीसरे पॉइंट का ताल्लुक कुछ डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी से है। उसमें एक पॉइंट है बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम बाद में काफी केस स्टडीज करेंगे, करेक्ट। इनफैक्ट मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर से केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। कई बार तो देखना ही समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस है या नहीं है, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कई मायनों में। किस मायने में? क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगी, यानी कि बिजनेस नहीं होगी, तो टेक्निकली उस पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेगा। वैसे स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड क्या कहता है भाई, बिजनेस का मतलब है एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। अभी आपने लिखना नहीं है कुछ भी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ये कहता है एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज कैपेबल ऑफ फेचिंग रिटर्न्स। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो अभी मैं समझाता हूं उसको। देखिए जी, मैंने आपका बिजनेस लिया, करेक्ट। अब आपके बिजनेस का मतलब है मैंने आपके एसेट और लायबिलिटीज लिए, आपके प्लांट, मशीनरी, मैन पावर, फोर्स वगैरह भी हो सकता है मैं टेक ओवर कर लूं। तो बिजनेस की परिभाषा क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट जो कि कैपेबल हैं आउटपुट के। हम उससे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हमें कुछ रिटर्न्स हासिल हों। रिटर्न्स हासिल हो, रिटर्न्स कैसे हासिल हो? डिविडेंड के रूप में हासिल हो या हमारी लोअर कॉस्ट के रूप में हासिल हो, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि जब तक कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस की परिभाषा में नहीं आएगी, टेक्निकली हम देखेंगे इंड AS 103 उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अभी मैंने कहा बाद में हमने इसमें इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडी भी करनी है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें स्टैंडर्ड क्या कह रहा है और स्टैंडर्ड में क्या क्या दिया है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्टैंडर्ड में तीसरे पॉइंट में मैंने कहा कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हैं, जिसमें एक टर्मिनोलॉजी बिजनेस के बारे में भी है। बिजनेस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है, ऑफ एसेट्स का, करेक्ट, विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड, यानी कि जिसका हम यूज कर सकते हैं, और यूज इस तरीके से कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और मैनेज या यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि हम को कुछ उससे क्या बोलते हैं रिटर्न्स हासिल हों। और रिटर्न किस फॉर्म में हासिल हो? रिटर्न हमें डिविडेंड के रूप में भी हासिल हो सकता है, रिटर्न हमें क्या बोलते हैं लोअर कॉस्ट के रूप में भी हासिल हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी फॉर दिस सडन इंटरप्शन। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि अब शाम का वक्त है और स्टाफ भी जा चुका है, कोई आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, तो मैं ये बता रहा था कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस आपने देखा इट इज ए सेट है, इट इज ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, या फिर इट इज ए सेट ऑफ एसेट्स
which can be conducted, which can be managed for the purpose of providing returns, और returns किस फॉर्म में हो सकते हैं, डिविडेंड के रूप में हो सकते हैं, लोअर कॉस्ट के रूप में हो सकते हैं। अभी मेरी चाय भी आ गई है और मैं चाय भी पी लूंगा अगर आपकी इजाजत हो। तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। याद रखें, जब तक बिजनेस की ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगी, इस इंड एस 103 का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। फिर स्टैंडर्ड ने एक्वायरर, एक्वायरी, एक्विजिशन डेट और बिजनेस के बाद एक और डेफिनेशन दी है, वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन की। अगली डेफिनेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन की दी है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा को पूरा करता है। अगर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा को पूरा करेगा, यानी कि बेसिकली मैंने बताया कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट in which an acquirer, as I said, obtains control of one business or other businesses, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसके तहत एक्वायरर किसी बिजनेस का कंट्रोल हासिल करता है, एक बिजनेस का या एक से ज्यादा बिजनेसेस का। याद रखें, बिजनेस वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगी और इंड एस 103 के दायरे में आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कुछ इसमें मैंने कहा डेफिनेशंस वगैरह भी दी हुई हैं। अभी मैं स्टैंडर्ड की केवल नॉर्मल बातें आपको बता रहा हूं, मैं इनके बारे में लिखूंगा भी, चिंता मत करें। करेक्ट, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीजें मुझे लिखानी भी होती हैं, आपको मालूम है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाद में हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड दिया गया है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। व्हाट इज कंटिंजेंट कंसिडरेशन? कंटिंजेंट का मतलब भी है जो किसी चीज पर निर्भर करता है। अगर एंटिटी ए एंटिटी बी का बिजनेस टेक ओवर करेगी तो फ्री में तो करेगी नहीं, हमें उसको कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है। आप लोगों को मालूम ही है, उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ये वर्ड है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। अब कंटिंजेंट कंसिडरेशन बेटे क्या है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन का मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो कुछ चीजों पर निर्भर करता है। एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस तो लिया और यह भी तय हो गया कि हम आपको 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए आज देंगे, लेकिन साथ में एक क्लॉज या एक एग्रीमेंट भी हो गया कि एंटिटी ए, लेने वाली एंटिटी बी को 5 लाख रुपए और देगी अगर आने वाले 2 सालों में हमारा प्रॉफिट इतनी मात्रा से ज्यादा होगा। यानी कि ये कंसिडरेशन कंटिंजेंट है, निर्भर है किस चीज पर? आने वाले सालों में अगर प्रॉफिट होगा। हालांकि आपको याद रखना है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन को भी रिकॉग्नाइज करा जाता है और इसको भी हम परचेज कंसिडरेशन के हिस्से में बाद में लेंगे। इसके बारे में चर्चा और आगे जारी रहेगी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी पॉइंट नंबर 3 के अंदर दी हुई थी। करेक्ट, अभी ये सब रफ वर्क है, अभी आपको नहीं लिखना है। 4th पॉइंट क्या है? अब सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, आइडेंटिफाइंग। अब ये अभी आपने लिखना नहीं है, मैंने कहा मैं बाद में आपको सब चीजें लिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ सुने, थोड़ा सा आपकी एक्लेमेटाइजेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक एंटिटी के लिए जरूरी है an entity shall determine whether a transaction is a business combination by applying the definition in this Ind AS। यानी कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन है या नहीं, उसके लिए इस स्टैंडर्ड में दी हुई परिभाषा का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। परिभाषा जो मैं बिजनेस के बारे में बता रहा था, यानी कि हम सिर्फ किसी एंटिटी के अगर एसेट और लायबिलिटी ले लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी एंटिटी ने उस एंटिटी को ले लिया और ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है और ये इंड एस 103 के दायरे में आएगी। नहीं, अगर हम किसी एंटिटी को टेक ओवर कर रहे हैं, ये जो ट्रांजैक्शन या इवेंट है ये बिजनेस की परिभाषा को खास तौर से सेटिस्फाई करे, तभी ये ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन बन सकती है। यानी कि इसका जब मैंने बिजनेस लिया तो एसेट और लायबिलिटी जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो कुछ इंटर रिलेटेड होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ताकि मैं उनको कंडक्ट कर सकूं, मैनेज कर सकूं, उनका यूज कर सकूं और इस तरीके से कर सकूं कि मुझे कुछ रिटर्न मिले। तब यह कहा जाएगा कि एंटिटी बी का बिजनेस हमने ले लिया और तब मैं इसको इंड एस 103 के दायरे में लूंगा। अगर मैंने
एंटिटी बी के सिर्फ एसेट और लायबिलिटी लिए, लेकिन अगर मैं वो सेट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी नहीं है, उनको मैं कंडक्शन और मैनेज नहीं कर सकता, या मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, तो तब वो इंड एस 103 के दायरे में नहीं आएंगे, तब वो नॉर्मल एक्विजिशन माने जाएंगे। जैसे आप एसेट खरीदते हैं या लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, जैसे नॉर्मल आप एंट्री करते हैं, तब आप उनकी एंट्री वैसे करेंगे, यानी कि उसको नॉर्मल एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी माना जाएगा, तब वो इंड एस 103 के दायरे में नहीं आएगा। ये एक बड़ा अहम स्टेप है। जाहिर है ये चीजें थोड़ी सी हल्की फुल्की देखने के बाद अब मेन चीज जिसका कि हमें इंतजार होता है वो है अकाउंटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हमने करनी क्या है, अकाउंटिंग। करेक्ट, अकाउंटिंग बेटे हमने मेन करनी है। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, बिकॉज मैंने अभी कुछ आपको लिखाया नहीं है, मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं, वी विल राइट ईच एंड एवरी वर्ड, डोंट वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट रिक्वायर टू वरी अबाउट दैट। ओनली थिंग इज दैट राइट नाउ यू हैव टू समहाउ acclimatize yourself with the terminologies of this Ind AS. That is what I am interested in right now. Accounting aspect क्या है? सबसे पहला स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैंडर्ड बोल रहा है, ध्यान ये रखना है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब एक एंटिटी, करेक्ट, जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर करती है और ऑफ कोर्स वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर लेता है, तो अकाउंटिंग करने के लिए हम एक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एक्विजिशन मेथड। ये एक्विजिशन मेथड क्या है, अब मैं ये बताता हूं। तो पहले तो अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, एंटिटी ए ने एंटिटी बी को टेक ओवर करा, करेक्ट, एंटिटी ए ने एंटिटी बी का कंट्रोल हासिल कर लिया, उसके 50% से ज्यादा शेयर हमने एक्वायर कर लिए। हालांकि कंट्रोल किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा अभी उसकी चर्चा धीरे धीरे होगी, अभी हम सिंप्लीफिकेशन के सहारे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के लिए एक्वायरर जो है एक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल करेगा, एक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल करेगा, एक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल करेगा। तो इसका भी क्या मतलब निकला? एक्विजिशन मेथड यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए ये एक्विजिशन मेथड के जो स्टेप हैं, वो पहला ये कि पहला स्टेप तो यही है कि पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा, आपको भी बड़ी हैरानी होगी जब मैं लिखूंगा आइडेंटिटी, या स्टैंडर्ड कहता है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये स्टैंडर्ड कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। सर ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो एक्वायरर? ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। अब आपको मैं यहां एक मजेदार बात बताता हूं। जब मैंने आपसे कहा कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस ले लिया, नो डाउट कि ये एक्वायरर है, ये एक्वायरी है, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में इंड एस के तहत ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भले ही ए ने इसका बिजनेस लिया हो, लीगल तौर पर तो यही एक्वायरर है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए इसको भी एक्वायरर माना जा सकता है। यानी कि जो एंटिटी जिसको टेक ओवर करा जा रहा है, वो जो कि टेक्निकली लीगल रूप से तो एक्वायरी कंपनी है, ये एक्वायरर है, लेकिन इंड एस में हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरी। तो कभी कभी रेयर सर्कमस्टेंसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस एंटिटी को लिया जा रहा है अकाउंटिंग करने के पर्पस के लिए, उसी को मैं एक्वायरर मानूं। इसीलिए ये स्टेप है आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। हालांकि इस पर भी कुछ केस स्टडीज मैंने दी हुई हैं। अब सेक्शन वाइज मैंने क्वेश्चंस को सेटअप करा हुआ है, बाद में हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो प्योरली आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर के टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पता करते हैं कौन एक्वायरर है। 99% जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा होता है वही अकाउंटिंग एक्वायरर भी होगा, वही लीगल भी होगा, लेकिन रेयर केस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक एक्वायरी कंपनी, लीगल एक्वायरी कंपनी अकाउंटिंग पर्पस के लिए अकाउंटिंग एक्वायरर कंपनी मानी जाए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए ये स्टेप है। एक्विजिशन मेथड कहता है कि सबसे पहले तो एक्विजिशन मेथड ही यूज करना है आपको, पहले तो ये खुशी होनी चाहिए, कोई और मेथड नहीं है। नंबर 1 एक्विजिशन मेथड यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करने के लिए एक्विजिशन मेथड यूज होगा। हम पहला स्टेप है कि हमें यह पता करना है कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। करेक्ट, लीगल एक्वायरर तो दिया ही होता है, अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है? हालांकि पता करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा 99.999% जो है, जो लीगल एक्वायरर है, जो बिजनेस ले रहा है, जो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, जो कंट्रोल एक्वायर कर रहा है, वही टेक्निकली हम बाद में देखेंगे अकाउंटिंग एक्वायरर भी होता है। लेकिन 0.1% ऐसे चांसेस हो सकते हैं
कि एक्वायरी, लीगल एक्वायरी कंपनी को अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक्वायरर कंपनी कहा जाए या माना जाए। ऐसा कब हो सकता है? मैंने कहा जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो तब हम उस पहलू पर आएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, एक्विजिशन मेथड के अंदर, यह भी आपने लिखना कुछ नहीं है, फिर हमें पता करनी होती है कौन सी वो डेट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। ये पॉइंट नंबर बी है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। मैं आपको बता ही चुका हूं, हालांकि इस पर भी मैंने अलग से कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसमें मैंने आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एक्विजिशन डेट का पता लगता है। हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, 99% ये बड़े क्लियर रूप से दिया रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, तो आप पता करें किस दिन को आपने लीगली कंट्रोल एक्वायर करा है। फिर पॉइंट नंबर सी है, मैंने कहा जब एंटिटी ए ने एंटिटी बी का बिजनेस लिया, करेक्ट, और हम मान लेते हैं कि एंटिटी ए ही अकाउंटिंग एक्वायरर है, यानी कि अकाउंटिंग के लिए एक्वायरर कंपनी ए है। अब हमें यह भी पता लग गया, लेट अस से कि ये फलाना फलाना डेट ऑफ एक्विजिशन है। ये दोनों चीजें क्लियर करने के बाद अब मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मेन अकाउंटिंग में पहले तो मैंने कहा अब मुझे ये देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी लिए हैं। हालांकि स्टैंडर्ड कहता है रिकॉग्नाइज, तीसरा स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड। आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड यानी कि जिनको आसानी से आइडेंटिफाई करा जा सके। तो जो एसेट आपने आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लायबिलिटी एज्यूम करी हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करें, उनको आप मेजर करें, और साथ ही साथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी आप रिकॉग्नाइज करें और मेजर करें। स्टैंडर्ड यह भी कहता है कि जब हम इनको मेजर करेंगे, हालांकि बाद में अलग से एक पॉइंट में दिया हुआ, लेकिन मैं यहीं पर बता रहा हूं कि इनको हम फेयर वैल्यू पर करेंगे, करेक्ट। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकती हैं जिसकी चर्चा आगे होगी। तो एक्विजिशन मेथड में पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि एक्वायरर कौन है अकाउंटिंग के लिए, क्या डेट, किस डेट ऑफ एक्विजिशन को हमने हकीकत में कंट्रोल एक्वायर करा, और तीसरा हमने जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करे हैं, एज्यूम करे हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने यहां पर यह भी बता दिया कि उसको हम मेजर जो करेंगे वो फेयर वैल्यू पे करेंगे। उसके अलावा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हम मेजरमेंट करेंगे। उसके अलावा फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे गुडविल या बार्गेन परचेज। गुडविल या बार्गेन परचेज कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो बात का पॉइंट है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको ऐसा करना है अकाउंटिंग करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? तो ये चार बेसिकली स्टेप है। हालांकि चार में से देखा जाए तो पहले दो तो नॉर्मल है, मेन स्टेप यही है कि आप एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, गुडविल या गेन, जिसको कि आजकल गेन ऑन बार्गेन परचेज कहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये आपके मेन स्टेप्स हैं जी अकाउंटिंग करते वक्त। अभी मैंने सिर्फ रफ काम स्टार्ट करा, मैंने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं करा। मैं तो अभी फेयर वर्क आज तो मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा, ये तो कमाल ही हो गया, करेक्ट। अभी मैंने आपसे कहा कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हमने, आइडेंटिफाइबल एसेट और लायबिलिटी हमने टेक ओवर करे हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको हम मेजर करेंगे, करेक्ट। सेपरेटली करेंगे, जो एसेट हमने लिए हैं, जो लायबिलिटी हमने ली है, उसके अलावा गुडविल, उसके अलावा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये तमाम चीजें गुडविल के, जब मैंने गुडविल लिखी तो बार्गेन परचेज ऑटोमेटिकली हो गया, बार्गेन परचेज, ये स्टैंडर्ड कहता है, करेक्ट। तो हमने इनको रिकॉग्नाइज करना है। मेन चीज है, इनको हम जनरली जो मेजर करेंगे वो किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे। ये स्टैंडर्ड की अगला पॉइंट है। स्टैंडर्ड का अगला पॉइंट टेक्निकली क्या है कि इनकी जो मेजरमेंट होगी वो फेयर वैल्यू पे होगी। जरा मैं चाय पी लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी आपने कुछ लिखना नहीं है, मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 सेकंड का सिर्फ। हाँ जी, तो
मैंने कहा तीसरे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। मैंने बताया जो भी एसेट लायबिलिटी गुडविल वगैरह आपने रिकग्नाइज करें उनको आप फेयर वैल्यू पे करेंगे मेजरमेंट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ना इसमें कुछ एक्सेप्शन है, हालांकि एक्सेप्शन पर मैंने बाद में अलग से केस स्टडीज लिखी हुई हैं, लेकिन अब पॉइंट चला है तो हल्का सा मैंने उसका भी बताया। एक्सेप्शंस जो हैं, एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में एक्सेप्शन जो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज नॉर्मली आप क्या करते हैं जब बिजनेस टेक ओवर, जब आप बिजनेस हासिल करते हैं नॉर्मली, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आपने 29 एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं या इंड AS 37 की बात करूं जिसका कि ताल्लुक कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी से है, लॉजिकली इंड AS 37 क्या कहता है कि बैलेंस शीट की डेट को अगर मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है जिसको तुम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हो, बहुत से लोगों को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब नहीं पता लगता। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब बैलेंस शीट की डेट को ऑब्लिगेशन है। हमें यह मालूम है कि हमें कुछ पैसा देना पड़ सकता है, हमें लग रहा है कि कोई लायबिलिटी है। अगर हमें लगता है कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स प्रोबेबल है, आउटफ्लो ऑफ फंड्स प्रोबेबल है, आपको याद है या नहीं है? अगर आउटफ्लो ऑफ फंड्स प्रोबेबल हैं तो आप उसको रिकग्नाइज करते थे एज ए लायबिलिटी के रूप में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? याद आया आपको कि नहीं? लेकिन यहां पर मैंने कहा पहले तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जितने भी एसेट और लायबिलिटीज आपने टेक ओवर करे हैं उनको आप रिकग्नाइज करेंगे, यानी कि अपनी बुक्स में लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने बिजनेस टेक ओवर करा और उनकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन आउटफ्लो ऑफ फंड्स की संभावना कम है। अगर इंड AS 37 को मैं मद्देनजर रखूं तो टेक्निकली मुझे इसको लायबिलिटी के रूप में रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ फंड्स ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो फंड्स नहीं है, तो मैं थोड़ी रिकग्नाइज करूंगा। इंड AS 37 तो यही कहता है, या एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 यही कहता है। लेकिन यहां पर इंड AS 103 क्या कहता है, उनकी अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है और चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप इसको रिकग्नाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन रिकग्नाइजेशन का हो गया। नॉर्मली हम रिकग्नाइज कब करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो। लेकिन यहां इंड AS 103 कहता है कि मैंने जिसका बिजनेस टेक ओवर करा उसकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो, हमने उसको रिकग्नाइज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसी तरह से कुछ और एक्सेप्शंस तुम्हें दी हुई है। एक है इसी तरह से इनकम टैक्स की है, ये एक्सेप्शन है। इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मैंने कहा इनकी चर्चा लेकिन आगे होगी, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। इंडिम्निफिकेशन एसेट, इंडिम्निफिकेशन एसेट, आपने पता नहीं ये सुना है या नहीं सुना। इंडिम्निफिकेशन एसेट क्या है? सपोज मैंने आपका बिजनेस टेक ओवर करा, करेक्ट, और आपकी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है 500 की। बिकॉज मैं आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो मैं इसको रिकग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में, चाहे आउटफ्लो ऑफ फंड्स प्रोबेबल हो या ना हो, ये मैंने अब आपको बता दिया है। लेकिन मैंने कहा मैं एंटिटी ए हूं, आप एंटिटी बी हैं। अब मैंने कहा भाई मुझे तो ये रिकग्नाइज तो करनी पड़ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इनजस्टिफिकेशन है, आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी और मुझे रिकग्नाइज करनी पड़ रही है। तो एंटिटी बी ने क्या कहा? एंटिटी बी ने कहा जिसका कि मैं बिजनेस या जिसका कि मैं कंट्रोल एक्वायर कर रहा हूं। जब मैं कहूं मैं बिजनेस ले रहा हूं तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि मैं इनका कंट्रोल एक्वायर कर रहा हूं। तो जब मैंने एंटिटी बी का कंट्रोल एक्वायर करा, उनके बिजनेस को लिया, तो मैंने एंटिटी बी को कहा भी आपकी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी 500 करोड़ की है, मुझे इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। एंटिटी बी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज होती है, अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज होती है, यानी कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो 300
लाख रुपए मान लेते 500 लाख की लायबिलिटी है, तो 300 लाख रुपए हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। इंडिम्निफिकेशन का मतलब ही होता है कंपनसेट करना। इंडिम्निफिकेशन एसेट, ये 300 लैक्स क्या है मेरे लिए? इंडिम्निफिकेशन एसेट है। अगर मुझे 500 लाख देने पड़ जाए तो बी एंटिटी बी मुझे कंपनसेट करेगी। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड कहता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जो आपने टेक ओवर करे हैं वो आइडेंटिफाइबल हो, आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं आपको ये भी कह चुका हूं कि उनको फेयर वैल्यू पे हम बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर मैंने ये भी बताया इसके कुछ अपवाद है, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल हम यहां पर नहीं लगा रहे हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो या ना हो, इसलिए ये इसको एक्सेप्शन कहा गया है। इसी तरीके से कुछ एक्सेप्शन इनकम टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इंडिम्निफिकेशन एसेट के बारे में भी हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग में जनरली हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी है, आपने कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स को पैसे देने हैं और मैं आपका बिजनेस ले रहा हूं, तो नॉर्मली मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। लेकिन और नॉर्मली इंडिम्निफिकेशन एसेट, कंटिंजेंट एसेट, एक तरीके से उसको हम कहां रिकॉग्नाइज करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन अभी मैंने कहा हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तो ये अपने आप में अपवाद हो गए नॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन के, तो ये भी अपवाद है। नॉर्मली नॉर्मल जो रूल है, जब नॉर्मल से हटके हम कोई काम करते हैं तो वो अपवाद माना जाता है। तो ये अपवाद है, हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसलिए पहले तो अपवाद है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये जो है ना, इनको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पॉइंट ये, इसलिए ये जो अपवाद है ये अपवाद माने जाते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको एकदम ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जब बाद में स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, दिस इज एन एक्सेप्शन टू रिकॉग्नाइजेशन, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, बट ऑल दीज आइटम्स आर एन एक्सेप्शन टू बोथ रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं कि ये अपवाद हैं रिकॉग्नाइजेशन के भी और मेजरमेंट के? ये अपवाद है रिकॉग्नाइजेशन के, वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नॉर्मली हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, अब हम करेंगे। और ये अपवाद मेजरमेंट के इसलिए हैं क्योंकि हम इनको फेयर वैल्यू पे नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो एसेट लायबिलिटी हम ले रहे हैं उनको हम फेयर वैल्यू पे करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ पॉइंट भी आपको मालूम है। उसके बाद स्टैंडर्ड ने बातचीत करी है मेजरमेंट ऑफ गुडविल की, गुडविल को किस तरीके से मेजर करा जाएगा, बिकॉज 7, 8, 9 जो भी पॉइंट है, तो मेजरमेंट ऑफ गुडविल। अब बिकॉज इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बार्गेन परचेज, तो इस पॉइंट की चर्चा बाद में होगी। करेक्ट। हालांकि मैं अभी एकदम फॉर्मूला आपको लिखा दूं कि भाई मैंने कंसीडरेशन कितना पे करा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, और उसमें से मैं माइनस कर दूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, तो ऐसा करके हमारे पास गुडविल आ जाएगी। लेकिन वो बताने का फायदा नहीं है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो तब हम आपको बताएंगे कि गुडविल या बार्गेन परचेज कैसे कंप्यूट होगा। जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी थी कि इस चैप्टर में से आपका एक थ्योरेटिकल, एक तो प्रैक्टिकल में से, एक तो छोटा प्रैक्टिकल, तो छोटा प्रैक्टिकल ना आपका इसी टॉपिक से आने के चांसेस है। करेक्ट। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, करीब मैंने 15-16 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक पर दिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बार्गेन परचेज, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ये टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगला पॉइंट बार्गेन परचेज के बारे में, मैंने कहा वो टॉपिक इसी में कवर होगा। करेक्ट। फिर स्टैंडर्ड ने अगला पॉइंट, एक्चुअली मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड में क्या क्या है। फिर अगला पॉइंट जो है वो कंसीडरेशन ट्रांसफर से। लो जी, स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप किसी का बिजनेस परचेज करेंगे या कंट्रोल एक्वायर करेंगे, करेक्ट, किसी को टेक ओवर करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, आप उसको कुछ पेमेंट देंगे। करेक्ट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पेमेंट आप देंगे यानी कि कंसीडरेशन, वो एक तो वो फेयर वैल्यू पे मेजर होगी। इसका क्या मतलब निकला? फेयर वैल्यू पे मेजर होगी। सपोज मैंने आपको 2000 शेयर दिए 10 रुपए वाले, लेकिन मार्केट में मेरी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 300 है सिंप्लिसिटी के लिए, तो परचेज कंसीडरेशन 2000 इंटू 20 नहीं माना जाएगा, डेट विल बी कंसिडर्ड 2000 इंटू 300। ये मतलब है इसका। नंबर 1 कंसीडरेशन के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं, मैं कैश में भी दे सकता हूं, शेयर्स में भी दे सकता हूं, इक्विटी में भी दे सकता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स में भी दे सकता हूं, वारंट्स में भी दे सकता हूं, शेयर वारंट्स में भी दे सकता हूं, ऑप्शंस में भी दे सकता हूं, मैं किसी भी रूप में आपको पेमेंट दे सकता हूं। ये कंसीडरेशन के अंदर पॉइंट है। करेक्ट। फिर एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है,
अगला पॉइंट स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक रखता है, अभी मैं रफ वर्क कर रहा हूं, अभी आपने कुछ नहीं लिखना है, कुछ मैं सब लिखाऊंगा, चिंता मत करें। बहुत से स्टूडेंट को तो लगता है पता नहीं ये लिखाएंगे नहीं लिखाएंगे, चलो लिख दो। क्या लिखोगे तुम इसमें, अभी कुछ मैंने क्लियरली लिखा ही नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इन स्टेजेस, अभी आप सिर्फ सुनते जाओ, पहले एक बार दिमाग में बना लो ये स्टैंडर्ड में क्या क्या है। बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, ये अगला पॉइंट है जी। इस पॉइंट में क्या है, सपोज मैं एंटिटी ए हूं, आप एंटिटी बी हैं, आपकी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, आपकी कंपनी की टोटल जितनी भी शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं उसमें से 35% शेयर मेरे पास हैं। अब मेरे पास है, इसका मतलब मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। कंट्रोल में कैसे कर सकता हूं, मेरे पास 35% शेयर्स ही हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए 1/4/2017, इसको ऐसा करते 21 कर लेते, 20 कर लेते, 1/4/2020 को मेरे पास आपकी कंपनी के 35% शेयर है, पहले से ही है, मैंने पहले से ही आप में इन्वेस्ट करके रखा है। इस दिन मैंने आपकी कंपनी के 15% शेयर और खरीद लिए, बल्कि 15 क्या, चलो ऐसा कर लो, मैंने आपकी कंपनी के 20% शेयर और खरीद लिए। अब मेरी तो इस तारीख को मेरी स्टेक होल्डिंग आपकी कंपनी में कितनी होगी, 55% की होगी। इसका मतलब अब आपकी कंपनी जो है, अब आपकी कंपनी जो है मेरे कंट्रोल में आ गई। दिस इज नोन एज, जस्ट इसको हम बोलते हैं स्टेप एक्विजिशन भी, या बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। पहले मेरी इन्वेस्टमेंट थी, धीरे धीरे करके मैंने आप में, पहले तो मैंने आप में पार्टिसिपेट करा और बाद में मैं आपको कंट्रोल करने लग गया। एक आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब बेसिकली ये हो गया। ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या खाली हाँ हाँ बोले जा रहे हो? कोई डाउट इसमें अभी तक किसी भी तरीके का? ये शीट्स में जरा नीचे रख दो, बहुत सारी शीट्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड में हम बाद में ये भी देखेंगे, बहुत सारी रफ शीट हो गई है, चिंता ना करें, अब हम मेन वर्क पे आ ही रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पज है कि पहले आपको बताना, सारी चीजों से अवगत कराना। बाद में हम देखेंगे स्टैंडर्ड ने एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि कभी कभी मैं किसी का बिजनेस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बल पर एक्वायर कर सकता हूं। नॉर्मली तो क्या होता है कि जब तक 50% से ज्यादा स्टेक्स हमारे आप में नहीं होंगे, आपका कंट्रोल हमारे पास नॉर्मली नहीं आता है। यानी कि जनरली कंट्रोल एक्वायर करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा। खर्च मैंने कहा हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, बल्कि मैं अपना कोई बिजनेस भी आपको दे सकता हूं। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कंसिडरेशन के पार्ट माना जाएगा। अच्छा, इसका मतलब नॉर्मली तो मैंने कहा कि हम आपको कुछ कंसिडरेशन देकर के आपका कंट्रोल एक्वायर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है दो एंटिटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जिसमें कंसिडरेशन का आदान प्रदान ही ना हो। मान लेते हैं एंटिटी बी और एंटिटी ए में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप हमें कंट्रोल कर लो, बात खत्म। तो इसमें कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड विदाउट एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड विदाउट एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? फिर लास्ट में हम देखेंगे, इनने कॉमन कंट्रोल के बारे में बातचीत करी है, स्टैंडर्ड ने कॉमन कंट्रोल के बारे में चर्चा, मैंने कहा मैं आपकी बिल्कुल लास्ट में करूंगा। यानी कि जब हम चैप्टर के आखिर में पहुंचेंगे ना, इससे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन भी डाले हुए, बल्कि हैवी क्वेश्चन से, बड़े बड़े क्वेश्चन से, जिनका 9-10 पेजों में तो सॉल्यूशन ही आएगा। तो कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड चर्चा बाद में होगी। ये है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन 103। निचोड़ अल्टीमेटली आप निकाल सकते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड का ताल्लुक क्या है कि जब हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं बिजनेस का या बिजनेसेस का, तो उस केस में एक्वायरर अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करता है। ऑफ कोर्स जब अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ सिंपल पॉइंट्स भी हैं, कुछ मीडियम पॉइंट्स भी हैं और कुछ थोड़ा सा महीन पॉइंट्स भी हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी। जितनी भी ये थ्योरेटिकल चर्चा मैंने करी है, मैंने कहा ये सारी मैं आपको लिखाऊंगा, आप इस बात से बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मैं कब लिखाऊंगा, कहां पर लिखाऊंगा, किस पॉइंट पर लिखाऊंगा, इसके लिए हम एक प्रॉपर टाइमिंग का इंतजार करेंगे। करेक्ट?
टाइमिंग के इंतजार का बताइए नहीं कि पहले अभी हम देखे भाई 6:07 पे लिखाना है या 8:09 पे लिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब किस पॉइंट पर आकर के हमने आपको ये सारी थ्योरी लिखानी है। फिलहाल इस पर्टिकुलर सेशन में अभी मैंने ये हल्का सा ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट सेशन में जो भी मैंने ये थ्योरेटिकल चर्चा करी है, थोड़ा सा हम उसको प्रैक्टिकल कर करके सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। करेक्ट? So it's a short goodbye from here, but shortly we are going to hold down another meeting.